Hey lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. In our previous video lecture, we covered up a very interesting topic and that particular topic was about the basics of our nervous system. Now in that particular topic, we saw the divisions of our nervous system and also we saw in detail about what do we understand by our sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Now, when we were dealing with that particular concept of sympathetic and parasympathetic nervous system, we also talked about our nerve fibers. Now, जो हमारे preganglionic nerve fibers होते हैं, whether they are of sympathetic nervous system or of parasympathetic nervous system, they are basically releasing a very important neurotransmitter, and the name of that particular neurotransmitter is acetylcholine. Now, जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं ऑफ अवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, they are mainly releasing noradrenaline, which is also known as norepinephrine as its main important neurotransmitter. बट जब हम पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, they are mainly releasing acetylcholine as they are main important neurotransmitter. सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी कि ये जो एसिटाइलकोलिन है ये हमारा नर्व एंडिंग कैसे प्रोड्यूस करता है, यानी कि वी विल सी द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, हाउ दिस एसिटाइलकोलिन इज गेटिंग स्टोर्ड इन अ वेसिकल, एंड जब एक्शन पोटेंशियल आएगा हाउ दिस सेम एसिटाइलकोलिन इज गेटिंग रिलीज्ड इनटू आवर साइनैप्स. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में दिस विल बी आवर मेन फोकस. The second important focus of our today's video lecture will be the concept of acetylcholine-esterases and also कुछ ऐसे drugs होते हैं जो हमारे nerve ending पे काम करते हैं. So our final topic of discussion for today's video lecture will be on drugs acting on cholinergic nerve ending. So without wasting any further time, let's get into the concept of synthesis, storage and release of acetylcholine from the nerve ending. Now, the very first important concept is about what do we understand by our cholinergic system. So we know कि जो acetylcholine है that is our main important neurotransmitter in our cholinergic system. Now कुछ ऐसे neurons होते हैं जिसे हम cholinergic neurons बोलते हैं. Now what do we understand by the concept of our cholinergic neurons? So cholinergic neurons are those neurons that will synthesize, store and release acetylcholine as its main important neurotransmitter. So let's get into the basics of our acetylcholine. Now जब भी हम घर पे खाना बनाते हैं, the main important thing that we need for preparation of food is the raw material. So यहाँ पे we need to synthesize a very important neurotransmitter and the name of that neurotransmitter is acetylcholine. So from this particular image we can see कि ये जो image है that is representing the nerve ending, and ये जो nerve ending है that is going to release acetylcholine as its main important neurotransmitter. But for the synthesis of acetylcholine कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल दैट वी नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आवर एसिटाइलकोलिन इज आवर कोलिन. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ये जो नर्व एंडिंग होती है यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर सिस्टम होते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर. So with the help of sodium choline co-transporter system, ये जो हमारा choline molecule है that will get inside our nerve ending. Now this choline will react with acetyl-CoA, and ये जब दोनों substances आपस में मिल जाते हैं, that is a very important enzyme that is acting on it, and with the help of that particular enzyme, our acetylcholine is getting synthesized. And the name of that enzyme is choline acetyl transferase. So with the help of the very important enzyme that is choline acetyl transferase, ये जो choline है and acetyl CoA है that will get combined
and acetylcholine will get produced. Now the question is, हमें ये तो पता है कि ये जो कोलिन है वो कहाँ से आया है, बट द क्वेश्चन इज कि ये जो एसिटाइल CoA है ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है. सो द आंसर इज वेरी सिंपल. हमने जब बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी वहां पे एक इंपॉर्टेंट हम साइकिल पढ़ते थे एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल वाज ग्लाइकोलाइसिस. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? So glycolysis is nothing but it is a metabolic pathway जहाँ पे जो ग्लूकोज है that is getting converted into pyruvate which is also known as a pyruvic acid. Now ये जो glycolysis cycle होती है that is taking place inside the cytoplasm. Now ये जो pyruvate जो हमने प्रोड्यूस किया है that will go into the mitochondria. एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पाइरुवेट है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. सो ये जो एसिटाइल CoA है दैट इज कमिंग फ्रॉम अवर माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल CoA बाहर कैसे आएगा. So the answer is with the help of citrate. So with the help of citrate, जो भी acetyl CoA produce हुआ है inside the mitochondria, that will get into our cytoplasm, and ये जो acetyl CoA है that will get reacting with our choline molecule, and finally with the help of our very important enzyme that is choline acetyl transferase, ये जो acetylcholine है वो produce होते हैं. नाउ ये जो एसिटाइलकोलिन है ये साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है बट हम इसे ऐसे ही नहीं रखते हैं. वी नीड टू स्टोर दिस एसिटाइलकोलिन इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज अवर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. बट ये जो एसिटाइलकोलिन है वो डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन में नहीं आ सकता है. नाउ फॉर द अपटेक ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिटाइलकोलिन from the cytoplasm inside the membrane bound vesicle, there is a very important transporter system, and this particular transporter system is known as acetylcholine transporter. So with the help of this acetylcholine transporter, ये जो acetylcholine है that is present in our cytoplasm, ये particular membrane bound vesicle में आ जाएगा and this particular acetylcholine will get stored. Now बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ऑन अवर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. नाउ जो प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल पे प्रेजेंट होता है द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज साइनेप्टोब्रेविन. एंड जो हमारी नर्व एंडिंग की जो मेम्ब्रेन है वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज सिंटैक्सिन. So as you can see on your screen, this particular protein is known as synaptobrevin, and ये जो particular protein है which is present on our nerve ending की membrane, that particular protein is known as syntaxin. Now जब भी action potential आएगा, there will be opening of our calcium channels and there will be influx of calcium. So as you can see कि ये जो calcium है that will come inside. Now कैल्शियम करता बेसिकली क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कैल्शियम आयंस ये जो सिंटैक्सिन है ये ओपन अप हो जाता है. नाउ जब ये ओपन अप होता है तो ये क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज साइनेप्टोब्रेविन. दिस साइनेप्टोब्रेविन विल फ्यूज विद आवर सिंटैक्सिन एंड ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है ये नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन के साथ मिल जाएगा and by the very important process that is known as exocytosis, जो भी particularly वेसिकल में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड वेसिकल्स में हमने क्या स्टोर करके रखा है, the answer is acetylcholine के मॉलिक्यूल्स. So with the help of this particular fusion यानी कि ये जो साइनेप्टोब्रेविन है एंड सिंटैक्सिन है ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे एंड विद द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो भी मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर है वो साइनेप्स में आ जाएगा एंड व्हाट इज स्टोर्ड इनसाइड आवर वेसिकल वी नो दैट इज एसिटाइलकोलिन. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन
कि ये जो एसिटाइल कोलिन है ये साइनेप्स में आ गए। नाउ ये साइनेप्स में आने के बाद व्हाट विल दिस एसिटाइल कोलिन विल डू? सो साइनेप्स में ये जो एसिटाइल कोलिन है इट विल वर्क अपॉन इट्स डिफरेंट रिसेप्टर्स, एंड रिसेप्टर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो ये जो एसिटाइल कोलिन है it will work on its specific receptors, and according to the action that is produced by the receptor different response देखने के लिए मिलते हैं। But do you think कि ये जो एसिटाइल कोलिन है ये लाइफ लॉन्ग काम करेगा अपने रिसेप्टर के साथ? The answer is no. So कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे कि ये जो एसिटाइल कोलिन है ये मेटाबोलाइज हो या फिर डिग्रेड हो जाए। इसके लिए एक साइनेप्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज acetylcholine-esterases। ये क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करते हैं इनटू एसीटेट एंड कोलिन, एंड फाइनली ये जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी है वो रुक जाएगी। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फेट ऑफ अवर एसिटाइल कोलिन। नाउ लेट्स जस्ट थिंक कि हमारे पास अगर कोई ऐसे ड्रग्स है जो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन को मॉनिटर कर सकते हैं, सो वी कैन एक्चुअली मॉनिटर द रिस्पॉन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटाइल कोलिन। सो लेट्स नाउ सी कि कौन से ऐसे ड्रग्स है जो नर्व एंडिंग पे काम करते हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ड्रग दैट वी नीड टू नो इज अवर हेमिकोलिनियम। अब ये हेमिकोलिनियम क्या करता है? जो कोलिन का अपटेक है ये उसको रोक देता है। अगर कोई भी ड्रग अगर कोलिन के अपटेक को अगर रोकती है, दैट मीन्स कैन आई से कि ये जो कोलिन जो नर्व एंडिंग के मेम्ब्रेन में आएगा वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? द आंसर इज जो कोलिन नर्व एंडिंग के मेम्ब्रेन में आएगा वो ऑब्वियसली कम आएगा। डू यू थिंक कि ये जो कोलिन है जो एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट करके एसिटाइल कोलिन बनाता था, नाउ अभी हमने पढ़ा कि जो कोलिन है उसका जो अपटेक है वो इनहिबिट हो गया है, कोलिन का जो लेवल है वो ऑब्वियसली कम होगा। ऑब्वियसली कम कोलिन रिएक्ट करेंगे विद अवर एसिटाइल कोए, एंड अल्टीमेटली जो एसिटाइल कोलिन का जो प्रोडक्शन होगा या फिर सिंथेसाइज होगा वो कम होगा। अगर एसिटाइल कोलिन कम सिंथेसाइज होंगे तो डेफिनेटली जो साइनेप्स में एसिटाइल कोलिन रिलीज होते थे वो भी कम होंगे। नाउ अगर ये एसिटाइल कोलिन साइनेप्स में ही कम है, एज आई टोल्ड यू कि ये जो एसिटाइल कोलिन है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। अगर कम एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स अगर साइनेप्स में प्रेजेंट है, दे विल एक्ट ऑन लेस एसिटाइल कोलिन के जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उस पे कम काम करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो कोलिनर्जिक की एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर देंगे। दैट इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज हेमिकोलिनियम। नाउ और एक ड्रग होता है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज वेसामिकॉल। नाउ ये वेसामिकॉल क्या करता है? ये जो एसिटाइल कोलिन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इसे ये इनहिबिट कर देता है। नाउ अगर ये एसिटाइल कोलिन के ट्रांसपोर्टर को अगर ये इनहिबिट कर देगा, डू यू थिंक मोर एसिटाइल कोलिन विल बी प्रेजेंट इन अवर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, और लेस एसिटाइल कोलिन विल बी प्रेजेंट इन अवर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल? The answer is there will be less presence of acetylcholine in our membrane bound vesicle. जब एक्शन पोटेंशियल आएगा अल्टीमेटली जो साइनेप्स में एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा वो भी कम होगा, एंड ओवरऑल जो कोलिनर्जिक की एक्टिविटी है, कोलिनर्जिक सिस्टम की जो एक्टिविटी है, दैट विल गेट reduced. That is our second important drug, and the name of that particular drug is vesamicol. Now एक important toxin यहाँ पे काम करता है, and the name of that particular toxin is botulinum toxin. Now ये botulinum toxin करता क्या है? As we know कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज साइनेप्टोब्रेविन, एंड नर्व एंडिंग के मेम्ब्रेन पे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज सिंटैक्सिन। ये बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करेगा? ये जो दो प्रोटीन है उसको डिग्रेड कर देगा। नाउ अगर ये दोनों प्रोटीन डिग्रेड हो गए,
दैट इज सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन अगर डिग्रेड हो गए, डू यू थिंक कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, यानी कि व्हेनेवर देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, डू यू थिंक कि ये जो साइनेप्टोब्रेविन है वो सिंटैक्सिन के साथ आपस में जुड़ पाएगा? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज बाय गिविंग बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या होगा कि ये जो साइनेप्टोब्रेविन है एंड सिंटैक्सिन है ये दोनों डिग्रेड हो चुके हैं. सो ये जब भी कैल्शियम आएगा, ये जो दो प्रोटीन है वो आपस में फ्यूज नहीं कर पाएंगे, एंड अगर आपस में ये फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे सो देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, एंड अगर एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा देन डेफिनेटली जो एसिटाइलकोलिन अगर भले ही मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में स्टोर भी हो तो वो भी रिलीज नहीं हो पाएगा, एंड दैट कैन लीड टू पैरालिसिस. सो दिस इज अवर थर्ड इंपॉर्टेंट साइट जहां पे हमारे कुछ टॉक्सिन्स काम करते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन इज बोट्यूलिनम टॉक्सिन. नाउ और एक तरीका हो सकता है कि एक हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस जो एंजाइम है ये क्या करते थे, ये एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन को प्रमोट करते थे. नाउ अगर मेरे पास कोई अगर ड्रग है which is blocking the activity of this particular enzyme, तो क्या होगा कि जो भी एसिटाइलकोलिन ये साइनेप्स में प्रेजेंट है उसका डिग्रेडेशन कम हो जाएगा. नाउ अगर डिग्रेडेशन अगर एसिटाइलकोलिन का अगर कम हुआ साइनेप्स में, सो कैन आई से कि ज्यादा एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. नाउ अगर ज्यादा एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे देन डेफिनेटली जो रिसेप्टर्स ट्रिगर अप होंगे बाय प्रेजेंस ऑफ मोर क्वांटिटी ऑफ अवर एसिटाइलकोलिन, ज्यादा कोलिनर्जिक एक्टिविटी मिलेगी. सो ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ये पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक करके अपनी एक्टिविटी को शो कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो हमारे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसको डायरेक्टली जाके स्टिम्युलेट करते हैं, एंड बाय स्टिम्युलेटिंग दो स्पेसिफिक cholinergic receptor it can enhance the activity of our cholinergic system. So the next thing that we are going to learn in our next video lecture is about कि ये जो एसिटाइलकोलिन है अल्टीमेटली ये तो अपने रिसेप्टर पे ही काम करने वाला है. So the next thing that we need to know is about कि कौन से ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन काम कर सकता है. So in our next video lecture, we will be starting with the concept of cholinergic receptor. So that's it for today's video lecture. अगर यहाँ तक आपने वीडियो लेक्चर देखा है, please consider subscribing to my YouTube channel. Press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video. Till then, see ya, bye bye, have a good day.